Hello, good morning student. Today we are going to learn one simple experiment which is related to the refraction of light. In previous period we have learned there actually introductory account of this lesson, that is a refraction of light, but we have going here details through the experiment. We have carry the experimental activity. Yes, and by carrying this experimental activity we have learned how the refraction takes place here, how the refraction takes place here. Yes, and the law of refraction. Again we have go to details here. So let us first start our experimental activity. Student, when we have carried any kind of the experiment, that time we have decided our aim. Actually, in this experimental activity, we have also decided our aim. What is the aim here? That's we have learned here what is a refraction of light. Again, we have learned here the law of refraction and Snell's law. Just okay. We have go detailed informations. We have understand about these refraction of light, reflection law, Snell's law. Yes, we have go to details here. Yes, we'll understand. So let us we have start our focused aim here. What is the aim of this experiment? That is the refraction of light. That is the refraction of light. So for this carrying the experiment, we necessary, yes, procedure, that is the activity. Yes, this activity is given in your textbook. We have read it thoroughly, yes, with understanding. We have read it, and after reading such activity we have follow the procedure. We have carry this activity, we have do the procedure here. Actually for carrying the procedure we require some necessaries. Just okay. So what we need here for this experiment? So number one, we require the glass slab. After that, second, drawing paper, which is a A4 size. Again, wooden board, we have as a drawing board also. Again, protector. This next one is the paper pin, and next one is the meter scale. Yes, these are our requirements. Just okay. We have collect it, and after the collecting it, we carry the experiment. Means we become ready for carry the experimental activity. First of all, we have to do the setup there. Just okay. Those required apparatus we have collected, we have to do well setup. Just okay. And such activity carry in presence of your teacher as well as your friend groups. Just okay. Means we have carry the 2 to 3 groups of students. We have make it and we have carry this activity. So we have arranged the setup here as I shown in the above given screen. I have arranged the setup here. In that setup I have tried to show the all apparatus here, that is the drawing board, drawing paper, yes, glass slab, again pencil, protector. I have well arranged it. Only I do the setup. Just okay. Again complete the setup. Yes, means it's become ready to carry the experiment here. So let us we have start the our procedure. Just so we have start the let us we have start our procedure. Actually we have do the setup well in manner and we have follow the procedure. So for following this procedure, actually we have doing the setup, and according to that getting setup their apparatus we have arrange it by the procedurally. Yes, as like this video display. Chaliye, so we have start here. Actually we have take the drawing board, we have put it drawing paper on the surface, we have fixed it with the paper pins. Again we have take the glass slab in the middle and we have mark out it. After the mark out we have put the glass slab outside. ठीक है. After then we have make one inclining line towards AB side. Just देखिए यहाँ पे inclining line, and on that inclining line we have put the paper pins as shown P and Q. Again we have arranged the glass slab. देखिए यहाँ पे हमने फिर ग्लास स्लैब को अरेंज कर दिया है.
and from CD side, yes, with the help of the eye we have make the, yes, come in a single line, arrange the paper pin P and S towards side CD. Yes, okay, with putting the glass slab. Yes, okay, again we have get confirm with your friends. Yes, we have said to your friend, yes, these paper pins are arranged in a series. You become sure these are in a comes in series as like a P1 जैसे कि P Q R S. ठीक है, then we have remove the glass slab. चलिए, we have remove the glass slab, we have take out it. Again we have, yes, intersect the point. चलिए हम अभी क्या करेंगे, पिन को हटाएंगे और पिन को इंटरसेक्ट करेंगे. जैसे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे ओ पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक लंब बनाएंगे, जैसे कि नॉर्मल बनाएंगे. ठीक है बेटा, देखिए ऊपर ब्लू लाइन से ये इंडिकेट किया जा रहा है. चलिए नीचे सीढ़ी की तरफ हम उसी तरह से करेंगे, पिन को मार्क जैसे कि वहां से ड्रॉ करेंगे, उसको गोल करके पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे और वहां पे क्यू डैश सॉरी ओ डैश जो पॉइंट मिल रहा है वहां पे हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे. अभी जो दो नॉर्मल्स मिले हैं यहाँ पे, एक ओ का नॉर्मल और ओ डैश का नॉर्मल, उसको हम फिर इंटरसेक्ट करते हैं. समझ में आता है, उसको लाइन को जोड़ लेते हैं. और जैसे हम लाइन को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे लाइन कैसे बन रही है, देखिए बेटा, पी क्यू एस आर एस ऐसे लाइन यहाँ पे दिखाई देती है. ठीक है, तो ये बेंड लाइन दिखाई दे रहा है, बेंड पाथ दिखाई दे रहा है. दिस इज द एक्चुअली ट्रैवलिंग पाथ ऑफ लाइट रे, ट्रैवलिंग पाथ ऑफ द लाइट रे. ऐसे ट्रैवलिंग पाथ एक कब मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब उस रेक्टेंगुलर मार्कआउट के ऊपर रखा था, है ना, और सीढ़ी साइड से जैसे आंख से हमने एक आंख बनकर एक्चुअली हमें शार्पली उसको जब देखा तो वो लाइंस कैसे बन रहे थे, सीधी बन रही थी, सीधी रेखा में मिल रही थी और पूरे चारों पिन यहाँ पे एक ही लाइन में बन रही है. लेकिन एक्चुअली तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है, सॉरी येलो लाइन से इंडिकेट किया है. अभी येलो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, दैट इज एक्चुअल ट्रेवलिंग पाथ ऑफ दैट लाइट. बट एक्चुअली when you have remove the glass slab, that time again I have show the one dotted line, yes, that is a closer to that blue bend line. Just okay, these line indicate the that's a traveling, that is a straight traveling ray. Just okay, and when we have get the straight traveling ray, when we have remove the glass slab, that time that is a side AB, towards side AB arranged paper pins P1 and P and Q, they comes in a straight line towards CD. Yes, actually we have follow the dotted line there, that is a straight line. Yes, in a only the one medium, that is a single medium, that is a only air medium, we do not put the glass there. But actually when we have put the glass slab, that time we have get the path is bended. So what we have learns here, we have learns here that is a refraction of light here. समझ में आता है बेटा, देखिए बेटा हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो किए. आफ्टर दैट वी हैव गो टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ. सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या बताता है बेटा, जैसे देखिए बेटा कोई भी जो प्रकाश किरण होता है, लाइट रेज होते हैं, एक्चुअली वो क्या करते हैं बेटा, वो एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं. तो दैट टाइम दे show changing their path, that time they show changing their path. एक्चुअली देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है ना डायग्रामेटिक अरेंजमेंट देयर, जस्ट ओके. तो देखिए बेटा दिस इज वन हैव अ यस presentations here. I have tried to show the above towards AB side, yes, that is a blue line, that is a PQ, that is the inclining line, just okay. And this inclining line they show the traveling path of the ray, yes, which is present in air, yes, and it reach at a point O, yes, okay. That time it changes their medium, yes. Actually when the medium goes to the change, path also goes to change there. एक्चुअली आपने पाथ कैसे चेंज होता है दिखाई देता है, देखिए बेटा एक्चुअली वी हैव गेट्स द opposite angles here, just okay. Actually when we have think about the trigonometry, that time it's a clear here. देखिए वहाँ पे इंक्लिनिंग लाइन से जो नॉर्मल को हमें एंगल मिलता है, वो मिलने वाला एंगल यहाँ पे कौन सा है, दैट इज आई.
वो क्या है बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी उसके अपोजिट साइड में हम जब देखते हैं अपोजिट एंगल मिल रहा है हमें, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले जो प्रोसीजर में देखा था ना, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम दैट टाइम इट शो चेंज इन देयर पाथ। एक्चुअली यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, जैसे कि हवा माध्यम से होते हुए PQ लाइन जैसे डेंस मीडियम में चलती है तो वो क्या बन रही है बेटा, नॉर्मल की तरफ यहाँ पे झुकती हुई दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पे एंगल क्या मिल रहा है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे छोटा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम बदलाव होता है। ठीक है, एक्चुअली फिर यहाँ पे डेंस मीडियम से होकर, अभी देखिए बेटा यहाँ पे थ्योरेटिकल हम जैसे सोचेंगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, the followings are the law of a refraction of light। yes, यहाँ पे कौन से हमें followings points मिलते हैं, जैसे कि देखिए बेटा, the incident ray and the refracted ray, yes, and the normal to be the incidence of the two transparent medium at that point of the incident all lines in the same plane। देखिए ये यहाँ पे मिला है हमें, समझ में आ रहा है। दूसरा वाला क्या मिलता है, the ratio of this साइन, जैसे कि सीन्स यहाँ पे हमें एंगल्स के द्वारा मिल रहा है, इंक्लूडिंग जैसे कि ऊपर वाला एंगल दैट इज एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को जैसे ध्यान में लेंगे तो यहाँ पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम जैसे कि साइन आई से इंडिकेट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम साइन आर से इंडिकेट करेंगे। और जैसे वो अपोजिट एंगल में मिलते हैं ज्योमेट्री के रूल के अनुसार, तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट हियर। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन से जैसे हमने इंडिकेट करने का वहाँ पे प्रयास किया बाजू में। चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। एक्चुअली हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल भी क्या होता है, अलग होता है हर एक कलर के लिए। ये हम आने वाले अगले चैप्टर में उसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। और हर एक सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कैसे होता है, अलग अलग होता है, हर एक का सेम नहीं होता है। जैसे कि ग्लास स्लैब से हमने लर्न किया तो उसका आने वाला एंगल हमें कुछ तो अलग सा मिलेगा। जैसे कि हम जैसे कैलकुलेट करते तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है 1.5 ग्लास स्लैब के लिए। तो हर एक जैसे अलग अलग हम जो पदार्थ यूज करेंगे तो उसके लिए वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा वो भी क्या मिलेगा, अलग अलग यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे अपने बुक में एक टेबल भी दिया। सो वी हैव गो टू डिटेल्स हियर to the refractive index। Actually in the refractive index what do you learn here in previous diagrammatic representations, actually I have tried to show in this slide also the diagram। yes, to related to this diagram, yes, there is a blue line indicates here। what's indicate the blue line, blue line indicate the that is a incident ray। ठीक है, it's a approaches to the point O। yes, and at that point O we have make the normal, again from that point O, just okay, we have get the normal। actually there is a change in medium, and due to that change in medium, yes, that incident ray, yes, it's a change in their path। incident ray they show the change in their path and it's bends toward the normal। that time we have get the true angle here, we have learned in previous slide। actually that is angle of incident and angle of refraction। why, because the angle here changes due to the change in medium, due to the change in medium। जैसे देखिए बेटा डायग्राम में यहाँ पे ऊपर वाला मीडियम यहाँ पे एयर है, दैट इज अ रेयर मीडियम। नीचे जो ग्लास स्लैब हमने यहाँ पे रखा था तो यहाँ पे ग्लास है, दैट इज अ डेंस मीडियम, दैट इज अ मीडियम 2 एंड मीडियम 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे बताया जाता है तो ये रेशियो के द्वारा बताया जाता है। ये जो रेशियो होता है यही रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला जाता है। समझ में आता है, तो इसमें हमें क्या रिलेशन मिलता है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो लाइट यहाँ पे मीडियम रिस्पेक्ट टू, अभी देखिए बेटा 1 रिस्पेक्ट टू 2, जैसे यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 respect to 2, 2 respect to 1, sorry 2 respect to 1 here।
Actually, we have get the ratio. Which ratio here? That is a velocity of light in medium 1. We have represent as a v1. जैसे कि हवा माध्यम में आती है तो उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे v1 के द्वारा, और जैसे हवा माध्यम से होते हुए वो डेंसर मीडियम में जैसे ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे v2 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका दोनों का रेशियो मिलता है। यस, मीन्स द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स यहाँ पे 2 रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा मिल रहा है यहाँ पे। तो सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। समझ में आ रहा है बेटा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे देखिए बेटा 2 रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलती है तो वेलोसिटी यहाँ पे v2 अपॉन v1 ऐसे यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलता है। अभी इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक मीडियम के लिए वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखिए हवा माध्यम के लिए हो तो हमने यहाँ पे v1 रिप्रेजेंट किया था, जैसे डेंस मीडियम में आता था जैसे कि ग्लास स्लैब के लिए वहाँ पे हमने v2 रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे हर एक की ये जो वेलोसिटी होती है ये सेम नहीं होती है। एक्चुअली ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक का कलर के जो ट्रैवलिंग किया जाता है उसके जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है कलर की, तो वो डिफरेंट कलर के लिए भी अलग अलग यहाँ पे होती है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। एक्चुअली देखिए बेटा मीडियम में भी वो हमें डिफरेंट दिखाई देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डिफरेंट दिखाई देता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें कुछ एक टेबल लर्न करने के लिए अपने बुक में दिया है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिया है, उसके हर एक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। जैसे कि एयर है, हवा है ना, हमें ये न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर तो इसमें हमें बहुत काम आएगा। देखिए बेटा हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हवा का 1.0003। चलिए आइस में कितना होता है यहाँ पे बेटा 1.31, वाटर में कितना होता है यहाँ पे 1.33। एक्चुअली ऐसे कुछ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए है, इसको तुम पढ़ना है, इसको याद रखना है। ठीक है बेटा, इट इज वेरी important for solving the numericals. Again we have to take the review of this experiment. Actually what we learn here, तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे क्या लर्न किया है, जस्ट देखिए। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है ना, प्रॉपर्टी। अभी देखिए यहाँ पे पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए है ना। अभी देखिए इसी रे डायग्राम के द्वारा हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यस, जो डिफरेंट मीडिया में कैसा होता है, तो एक्चुअली उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं उसके रूल्स या प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बेटा पहली वाली डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान दीजिए, वहाँ पे एक ब्लू लाइन है और एक नीचे वाली ब्लैक लाइन इंडिकेट की है। वहाँ पे मीडियम में भी बदलाव आ रहा है, ऊपर जो हवा माध्यम और ग्लास यानी कि डेंस मीडियम, जैसे रेयर मीडियम एंड डेंस मीडियम ऐसे यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। एक्चुअली देखिए साइड ए और नीचे वाली जो साइड बताइए वो क्या बेटा, यहाँ पे साइड सी डी, ऊपर वाली साइड ए बी है, नीचे वाली साइड सी डी है। देखिए ए बी साइड के ऊपर हमें देखिए इंसिडेंट लाइट जैसे हवा माध्यम से होते हुए जैसे ग्लास मीडियम में आती है तो क्या होती है बेटा, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए when a light ray passes from a rare medium to the denser medium it bends toward the normal, it bends toward the normal। ये यहाँ पे पहली हमें जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए बेटा अभी दूसरे वाली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बताता है यहाँ पे, देखिए अभी हम ग्लास स्लैब के साइड कौन से साइड में है, अभी सी डी साइड में है, तो वहाँ पे क्या इंडिकेट होता है, वहाँ पे डेंस से रेयर में चलती है। तो यहाँ पे रूल क्या बनता है, यहाँ पे क्या हमें पढ़ने के लिए मिलता है, when the light ray passes from denser medium to the rare medium it bends away from the normal actually। अभी देखिए बेटा तीसरी वाली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उससे हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है, क्या लर्न करने के लिए मिलता है। देखिए जैसे लाइट, अभी देखिए बेटा लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो उसमें कोई भी बदलाव, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं दिखाई देता है। देखिए पहले दो जैसे रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा है कि वहाँ पे डेविएशन मिल रहा था नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल को लेकर हमने वहाँ पे डेविएशन को लर्न किया था है ना बेटा। पहले डेविएशन नॉर्मल की तरफ होता हुए दिखाई देता था, दूसरा वाला वो नॉर्मल को
जैसे दूर चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे लाइन स्ट्रेट फॉलो करती है या ट्रेवल करती है तो वहाँ पे कोई भी जैसे मीडियम में बदलाव आता है तो भी वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं दिखाई देता है। चलिए वो देखिए यहाँ पे क्या बताया, व्हेन लाइट रे इज अ इंसिडेंट नॉर्मली, कैसे बेटा, एट द बाउंड्री बिटवीन द मीडियम, समझ में आता है, वो बाउंड्री को जैसे स्ट्रेटली ट्रैवल करते हुए चलती है तो वहाँ पे कोई भी हमें डेविएशन या कोई भी बदल होते हुए वहाँ पे नहीं दिखाई देता, मीन्स इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, यस, एंड हेंस यस इट डज नॉट गेट द रिफ्रैक्टेड, वहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे IMP, यही अपना जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे लर्न किया है इसी का ये यहाँ पे एस्पेक्ट या अपना जो एम था, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, उसको प्रूव कर दिया है इस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमने किया। अभी इस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी को जब तक हमें समझ में नहीं आता है तब तक इसको बार बार हमें सुनना है।